19th century healthcare facilities condition. In 19th century, care of sick was still closely alive with superstitions, religion and magic. People used to believe in tantras much more than the healthcare facilities. प्रणाम बाबा। आओ बच्चा बैठो, बताओ क्या परेशानी हुई। पेट में बहुत दर्द होता है और उल्टी और दस्त भी लगने लगे। कोई बात नहीं बच्चा, बाबा के हाथ ऊपर विश्वास रखो और ये चूरन पकड़ो, इसका इस्तेमाल कर लेना। बाबा चूरन खा के पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल बच्चा, दवा दारू में कुछ नहीं रखा है। इस चूरन का इस्तेमाल करो, सारी बीमारी दूर भागेगी। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। लो बेटा चूरन खा लो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? Scene 2. Birth of Florence Nightingale. During this dark period of nursing, on 12th May 1820, a baby girl was born into privilege and wealth in the city of Florence, Italy. She was raised in a world of luxury, art, and education. From the outside, it seemed her future was already written, that is, marriage, society, and quiet comfort. Scene 3. Convincing her parents for nursing as a profession. Let's see how Nightingale approached her parents and told them about her ambition to become a nurse. मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है आपको? मॉम डैड, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मुझे आगे जाके एक नर्स बनना है। नर्स? तुम जानती हो ना हमारे समाज में लोग नर्स को कितना कम महत्व देते हैं, और मैं चाहती हूँ तुम हमारे वर्ग की बाकी लड़कियों की तरह एक ऊंचे घराने में शादी करके अपना जीवन व्यतीत करो। मॉम डैड, जब भी मैं किसी बीमार आदमी को देखती हूँ या उसकी सेवा करती हूँ, मुझे सुकून सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी ला पा रही हूँ, और यही एहसास मुझे नर्सिंग की ओर खींचता चला जा रहा है। फ्लोरेंस, मुझे तुम्हारे भविष्य की बहुत चिंता है। मैं समझती हूँ तुम ऐसी जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं बनी हो। मॉम डैड, मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, समझा है, और नर्सिंग केवल मेरा सपना नहीं है, ये मेरी पहचान है। बेटा तुम्हें पता है ना रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर भी तुम एक नर्स ही बनना चाहोगी? मॉम डैड, आप दोनों ने ये तो मुझे सिखाया है कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और आज जब मैं ये करने जा रही हूँ तो क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं। Scene 4. Journey to become a nurse. After much of the struggle with her family, Nightingale enrolled herself as a nursing student in Lutheran Hospital, Germany in 1844. She returned to London after her studies and took a nursing job in Middlesex Hospital, London. She was highly dedicated and impressive in her performance, and hence she was promoted as a superintendent within a year. Scene 5. Crimean War. On October 1853, the Crimean War broke out between Russia and alliance of Britain, France and Turkey. The war would become infamous not just for its violence but for the condition faced by the soldiers. Scene 6. Ill condition of soldiers despite being provided by medical care. Hospitals were overcrowded, unsanitary and ill-equipped. Disease ran rampant, cholera, typhoid and dysentery claimed more lives than bullets.
Scene 7. Letter sent to Nightingale. British public demanded change, so Florence Nightingale was called upon. Nightingale received a letter from Secretary of War in late 1854 asking her to organize a corps of nurses to take care of the sick and fallen soldiers in war aside. Scene 8. Arrival of team of Nightingale with nurses. She sailed to the front line with a team of 38 nurses. What she found in the military hospital was worse than she could have imagined. Filthy rats, moldy food, poor sanitation. The death rate was staggering. Let's see how she cope up with all. ये देखिए यहाँ पर हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। सफाई नहीं, दवाइयाँ देने के बाद भी मरीज मर रहे हैं। डॉक्टर, हमें यहाँ की सफाई पे ध्यान देना होगा। साफ चादरें, ताजा भोजन और ताजगी भरा वातावरण लाना होगा। ठीक है मैडम नाइटिंगेल, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। मैं नहीं चाहती मेरे देश के सैनिक और अधिक बीमार हों। तो और भी गंभीर होते जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये सब करना व्यर्थ है। अभी हमारा कर्तव्य है सैनिकों की सेवा करना, और हाँ, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। ठीक है मैम, आप जैसा चाहती है वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। हम हमारे सैनिकों का उपचार पूरा अच्छी तरीके से करेंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाके साफ सफाई की बिल्कुल निगरानी अच्छे से करूँगी। जब से मैडम फ्लोरेंस आई है, हमारी आशा की किरण बढ़ गई है और हमारे जीने की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही बोला कैल्विन, जब से ये लोग आए हैं हमारा जख्म जल्दी भर रहा और हम पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तुम दोनों सही कह रहे हैं, जब से ये लोग हमें देख रहे हैं हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्मिथ, आप अभी कैसे हैं? आपको कैसा लग रहा है अभी? मैम, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरा जख्म भी पहले से बेहतर भर गया है। आपका घाव ठीक है अभी? जी मैम, मुझे जब भी आप देखने आती मुझे अपनापन सा लगता है, ऐसा लगता है मेरी देखभाल के लिए कोई यहाँ पर मौजूद है। आप सैनिक होकर जिस प्रकार देश की सेवा कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। Scene 9. Awarded by Queen Elizabeth, which was later named as Nightingale Award. When she was back to London, she met with a hero's welcome and the Queen rewarded her work. She was also given a cash reward of $250,000. मिस नाइटिंगेल, आपने अपनी सेवा और समर्पण से पूरे विश्व को प्रेरित किया है। ब्रिटिश काउंट की ओर से मैं आपको इस सम्मान से नवाजित करना अपना गौरव समझती हूँ। Scene 10. The award prize received by Nightingale was used by her as an establishment of St. Thomas Hospital. नर्सिंग कोई छोटा काम नहीं है, ये समर्पण है, त्याग है और लोगों की सेवा करने का एक प्रयास है। मैम, ये आपके बिना संभव नहीं था। आपने नई रास्ता दिखाई, नई उम्मीद दी, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। हर वो हाथ जो लोगों की सेवा करता है वो ईश्वर के हाथ होते हैं, और इसे कभी छोटा मत समझो।
मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी रोशनी किसी के जीवन को रोशन करती है तो ऐसा समझो मैं कभी गई ही नहीं। She asked no praise, she sought no crown, yet lifted the fallen and bent gently down. A light in the silence, a golden